Hi, good morning everyone. Hope you understand well what are like terms, what are unlike terms, what is the degree of polynomial, what are polynomial expression and what are algebraic expression. Now next exercise 8.2. So that I divide into two parts. First part is you have to go with only addition and subtraction part of the algebraic expression. How we can add two algebraic expression by different methods and how we can subtract two algebraic expression by two different method, horizontal method and vertical method. Okay, now first one is under addition of algebraic expression. Suppose I have one example, like I have to add 3a and 2a. 3a and 2a. For very first thing you have to remember, before adding and subtracting any term that is a part of algebraic expression, that should be in the form of like terms, because always we can add or subtract like terms. Unlike terms never be added or subtracted. Okay, so here 3a and 2a, if you just look at these terms, these are like terms. Okay, so that means 3a and 2a, a is common between that. We never add the variable, we always add the number that is multiply with particular variable that is the same variable. Okay, first you have to choose the like terms. 3a and 2a shows that this is my like terms, एक जैसी terms है a form में, तो a को मैं common ले लूँगी क्योंकि ये show off करता है कि ये मेरी like terms है. अब इसके साथ जो number multiply हो रहा है, here number is 3 is multiplied, here 2 is multiplied. 3 plus 2 gives me 5 and my required answer is 5a. A only shows that is the addition of the like term which contains only single variable is a. Now but what happen if I have some algebraic expression? Algebraic expression means combination of variable, constants and everything. That's it. So if I have a question like I have to add minus 5x square plus 4xy minus 4 and 3x square minus 2xy plus 8. So I have this two algebraic expression. So I have two methods to add it. One is horizontal method, another is vertical method. Horizontal method, what you will do, this algebraic expression should be written first, that later, and in place of and you have to put add sign. Okay, so when you put add sign, when you open the bracket, so minus 5x square, so all will be same place, there is no changes because outside the bracket there is a positive sign. After that you just pick the like terms, like here minus 5x square and 3x square are like terms, 4xy and minus 2xy are like terms, and minus 4 and plus 8 are constant are like terms. You just make the group of like terms, then you go further with whatever sign with like terms numerical part is there, you have to add subtract according to that. If I have like minus 5 and 3, I take x square common, minus 5 plus 3 give me minus 2, 4 minus 2 give me 2, xy as it is xy, and this x square show that I have to add or subtract like terms. Minus 4 plus 8 gives me plus 4. हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना है, जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसको लिखने के बाद फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर सेकंड ब्रैकेट में सेकंड एक्सप्रेशन लिखना है. उसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे सेम वेरिएबल की टर्म्स है, उसकी ग्रुपिंग कर देनी है. माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2xy, देन माइनस 4 प्लस 8. अब कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड होगी, सेम वेरिएबल की टर्म के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगी. ओके, जैसे यहाँ पे माइनस 5 और प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर को तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर को जब एज इट इज़ लिखेंगे उसके साथ सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट उसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा. माइनस 5 प्लस 3 गिव मी माइनस 2 एंड प्लस 4 माइनस 2 गिव मी प्लस 2 xy एंड माइनस 4 प्लस 8 गिव मी प्लस 4. दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर.
बट व्हाट हैपन इफ आई हैव टू गो विद द वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में जो फर्स्ट आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा आपने सबसे पहले उसको ऊपर लिख देना फर्स्ट रो में। उसके बाद जो आपका सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यू हैव टू चूज द लाइक टर्म्स one by one each term from the second expression and write under the like term। ओके, सेकेंड एक्सप्रेशन में से आपने एक जैसी टर्म लाइक टर्म्स आपने चूज़ करनी है जिसमें वेरिएबल सेम है, वो ऊपर आपने चेक करना है फर्स्ट वाली रो में कौन सी टर्म उस वेरिएबल को मैच कर रही है, वो उसके नीचे आपने प्लेस कर देना है। लाइक दिस इज 3x² शुड बी रिटन अंडर -5x², देन -2xy should be written under +4xy and +8 should be written under -y. It should be arranged in such a way that it should be written under the like terms. So now if addition is there, you just write the variable as it is in answer and only according to the rule of subtraction addition you have to add subtract the terms. -5 + 3 give me -2, then +4 -2 give me +2 and -4 + 8 give me +4. So that is my required term, that is the same like that. But what happen if subtraction condition is there, subtraction of algebraic expression? If I have a statement subtract -2a from -4a, I told you many times whatever term is written after the from word that should be placed in first position and before the from word expression is written in the second position and between that there will be a negative sign because you are going to subtract. Like -4a will be in first position minus and -2a will be in second position. Now when negative sign multiply with negative sign that gives me positive. -4a plus 2a gives me -2a. Because we never add subtract the variable, we just write the variable that shows that we are going to add the like terms. Only numerical part is added or subtracted. Variable of the like term never be added or subtracted. That should be accompanied with the calculation as it is. Next is if you have the bigger expression like 4lmn -3m³ n plus 7 from 7lm -4m³ n plus 2. Okay, if it is a horizontal method, that expression which is written after the from word that should be kept in the first position and before the from word expression is kept in the second position and negative sign between that. Okay, now in this case, in the first case we have positive sign between the two expression. Here we have a negative sign between the two expression. So what does negative sign means? Negative sign means when you open the second expression bracket, if negative sign is outside, all sign will be changed inside the bracket after opening the bracket. If there is 7lmn -4m³ n plus 2, first term should be right as it is, and this negative sign shows that when you open the second bracket, all sign will be changed in the second bracket. If it is positive, changes to negative and negative changes to positive. Here this is +4lm changes to -4lm, minus changes to plus and plus changes to minus. After that you have to arrange the like terms like lmn and 7 - 4, lmn m³ n and m³ n, -4 + 3 m³ n, and here +2 and -7 give me -5. Now 7 - 4 give me 3lmn and -4 + 3 give me -1. We generally not write 1, so it is understood that if no numerical term is written with any variable, so it's understood that there is a 1, then -5. Now it is a vertical method. So what you will do in the vertical method? In previous horizontal expression, which expression you kept at the first position, that should be written in the first row. Okay, and which expression that you have written in the second position, that same expression should be written in the second row, but condition is same, that should be written under the like term. सेकेंड एक्सप्रेशन का जो टर्म्स है वो आपने लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखनी है. अगर ऐसी कोई टर्म आती है जो ऊपर वाली टर्म के साथ मैच नहीं करती तो आपने उसको साइड पे थोड़ा ओपन एरिया में लिख देना है
बिकॉज इट शोज़ दैट इस टर्म की कोई भी लाइक टर्म ऊपर वाली रो में अवेलेबल नहीं है। तो जो लाइक टर्म्स है वो लाइक टर्म्स के नीचे लिखोगे, जो लाइक टर्म्स नहीं है वो थोड़ा साइड पे लिख दोगे। बट यहाँ पे अब तीनों ही लाइक टर्म्स थी। यहाँ पे आ गया आपका +4 सेकेंड टर्म में था, +4 LMN -3 M3N देन +7, ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन था। अब सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है, सेकेंड एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल मार्क कर दिया। सर्कल का मतलब है कि मुझे ये वाले साइन काउंट नहीं करने, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो नीचे इसकी जगह पे साइन लिखे होंगे वो इनकी जगह पे काउंट करने, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स। वाई साइन इज चेंज, बिकॉज हियर व्हेन वी राइट इन द ब्रैकेट, जब हमने ब्रैकेट में लिखा था, नेगेटिव साइन ओपन किया था, ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म के साइन चेंज हो गए थे। इसी तरह से यहाँ पे हमारा ब्रैकेट तो नहीं है, पर जब सब्ट्रैक्शन की कंडीशन आती है तो जो आपका सेकंड नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा सिर्फ उसके साइन चेंज होंगे, ऊपर के कभी साइन चेंज नहीं होंगे। माइनस पॉजिटिव का माइनस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। और जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपने जो साइन चेंज किए थे, जिसके साइन चेंज किए थे वो उसको सर्कल कर देना। तो ये शो होता है कि आपको उन साइन को काउंट ही नहीं करना, उसकी जगह पे आपने जो नीचे साइन लिखे वो काउंट करना है। +7 -4 गिव मी +3, -4 +3 गिव मी -1 and +2 and -7 give me -5. That is my required answer. Now your exercise 8.2, your first question, you have to add the terms. Add the following algebraic expression horizontally. Horizontally means जैसे आपको एक्सप्रेशन दिया आपने वैसे ही इसको ऐड करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया 2x² -3 4x² -4, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, अरेंज द लाइक टर्म 2x² + 4x² + -3 -4. 2 + 4 give me 6x² -7. Similarly in the B part also, when you arrange the like terms, here 3x4 and 3x², no like term is there. अगर आपको किसी टर्म की लाइक टर्म्स अवेलेबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ ही आपने आंसर में लिखना है, और जो लाइक टर्म्स अवेलेबल है उसको ही आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे x की थी -2 + 5 गिव मी +3 and 4 + 8 गिव मी 12. अदर टू टर्म्स की लाइक टर्म्स नहीं थी, वो एज इट इज़ आपके आंसर में आएगा। नेक्स्ट इज 4ab² -3 3aq² + 7ab² + 7c. अब यहाँ पे क्या है, 3a³ इसके मेरी कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसको मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया। 4ab² और +7ab² लाइक टर्म में अरेंज कर दिया, -7 + 3c। जो लाइक टर्म्स है उसकी ग्रुपिंग कर लेनी है, फिर आपने उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, एंड योर रिक्वायर्ड आंसर इज 3a³ + 11ab² + 2c. सिमिलरली डी पार्ट में भी जो आपकी लाइक टर्म्स है वो अरेंज की। अब बीच वाली टर्म की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो 4m² + 2m² गिव मी 6m² + 2n और -2n। अगर आपकी सेम टर्म हो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म हो, तो आपस में वो कैंसिल हो जाएंगी। तो सिर्फ आपके पास ये टर्म बची, इसकी कोई भी लाइक टर्म अवेलेबल नहीं है, ये दोनों आपकी कैंसिल हो जाएंगी। 5m - 2n² एज इट इज़ आपका आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपने ऐड तो करना है बट वर्टिकली मेथड से। अब आपके पास नेक्स्ट इज, अब आपको जो एक्सप्रेशन दिए हैं आपने उसको वर्टिकली मेथड से अरेंज करना है। तो आपको जो 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपने पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन यू हैव टू राइट इन द टॉप मोस्ट रो, फर्स्ट रो में लिखना है। उसके बाद जो सेकंड एक्सप्रेशन है, फर्स्ट टर्म में जो आपकी लाइक टर्म्स है उसके नीचे लिखना है, जैसे 4v - 1 लाइक टर्म्स के नीचे अरेंज किया। थर्ड एक्सप्रेशन में 2v² + 3v था, तो जो लाइक टर्म थी उसके नीचे अरेंज करना है। देन यू हैव टू ऐड द टर्म्स, -3 - 1 गिव मी -4। जहाँ पे कोई टर्म्स नहीं लिखी होती वहाँ पे अंडरस्टूड है 1 आएगा। 1 + 4 5 + 3 8 एंड 2 + 1 गिव मी 3v², दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से जो आपका बी पार्ट है 4x² y³ - x³ y² + 7, उसमें भी आपने पहली टर्म तो आपने एज इट इज़ फर्स्ट रो में लिख लेनी है। सेकेंड एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग टू लिखना है कि जो सा सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल के नीचे ही आना चाहिए। 7x² y³ + 3x³ y² + 3, 7 + 3 10, -1 + 3 + 2 एंड 4 + 7 11 x² y³, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट है आपका 3x4 माइनस 2x² प्लस x माइनस 17, फर्स्ट एक्सप्रेशन था। सेकेंड एक्सप्रेशन में माइनस 12x5 प्लस 14x4, उसके बाद फिर से आपका 2x4 आया तो वो आपने थोड़ा उसके नीचे लिख देना है, क्योंकि उसी रो में नहीं लिखना, क्योंकि उसके बाद अंडरस्टूड है कि मेरी नेक्स्ट रो स्टार्ट हो गई। 2x4 नाउ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 2 और 7x³ की कोई भी लाइक टर्म नहीं थी, तो वो हमने थोड़ा साइड पे ओपन एरिया पे लिख देना है, बिकॉज इट शोज दैट दिस टर्म हैज़ नो लाइक टर्म्स। नाउ यू हैव टू ऐड, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, जब सेम टर्म होगी पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगी। बाकी माइनस 12x5 देन 5 प्लस 14 19x4 देन माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 minus 17 minus 2 minus 19 and this term written as it is. So that is my required answer. Next is your question number 3rd. You have to subtract horizontally. हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, जो आपको एक्सप्रेशन दिया वो तो आपने एज इट इज़ लिख दिया, बट नेगेटिव साइन पहले आपने सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट में जो साइन चेंज होंगे, जब आप नेगेटिव साइन को ओपन करोगे तो जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन के बाद जो ब्रैकेट होगी उसके सारे साइन आपने चेंज कर देने हैं। फिर आपने जैसे आप एडिशन में पीछे आप सॉल्व करते थे लाइक टर्म्स चेक करके ग्रुपिंग बना के, वैसे ही आपने फर्दर करना है। जैसे आपके पास है 5m² माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में 4m² प्लस 2, अब नेगेटिव साइन आप पहले ओपन करोगे तो आ जाएगा माइनस 4m² एंड माइनस इंटू प्लस गिव मी माइनस 2, साइन सारी चेंज हो जाएंगे जब आप नेगेटिव साइन ओपन करोगे, क्योंकि नेगेटिव सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन के साथ ओनली, टर्म के साथ नहीं, टर्म के साथ जो भी साइन होंगे। तो इस अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि आपका पॉजिटिव साइन है। अब आपने ग्रुपिंग की लाइक टर्म्स की, m² माइनस 6 इज माई रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली बी पार्ट 5l5 माइनस 2l, सब फर्स्ट you will open the bracket, negative sign is outside, change all the sign within the bracket. If it is positive, that changes to negative and negative changes to positive. Now you arrange the like terms and add subtract. I will get the answer. 5 minus 7 give me minus 2 minus 2 minus 4 minus 6 and plus 4. Similarly C part also, you have to first remove the negative sign by opening the bracket, change all the sign of the terms that present within the bracket. If like positive changes to negative, negative to positive, positive to negative. Now group, make the group of like terms. Those terms group are not available, you have to write as it is in the answer. जो terms के आपके groups नहीं है, like terms नहीं है, तो वो आपने as it is ही आंसर में लिखना है। like 7a² b² का मेरा कोई भी ग्रुप नहीं था तो उसको as it is मैंने आंसर में लिया, ab² और ab²। 9 minus 2 give me 7 एंड माइनस 1, अगर कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या है 1, माइनस 1 माइनस 4 गिव मी माइनस 5 a² b²। सिमिलरली व्हेन आई सॉल्व डी पार्ट आई गेट 2xy² माइनस 2y² प्लस 3y। फोर्थ क्वेश्चन में यही एक्सप्रेशन को आपने वर्टिकली मेथड से करना है, डिफरेंट एक्सप्रेशन है, थोड़े बड़े एक्सप्रेशन है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन, तो जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा उसको पहले एज इट इज़ आपने फर्स्ट रो में लिख देना। अभी नेगेटिव साइन को कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको साइन चेंज नहीं करनी जब आप अभी टर्म्स लिख रहे हो, ओके। साइन ऑटोमेटिकली हम सब्ट्रैक्शन से पहले चेंज करेंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या था, सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट ओपन की जाती है और नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो सारे साइन जो ब्रैकेट में वो चेंज हो जाते हैं, जो नेगेटिव साइन के बाद वाली ब्रैकेट होती है। नेगेटिव साइन के पहले वाली ब्रैकेट को आपने कुछ नहीं करना, नेगेटिव साइन के बाद वाली ब्रैकेट के आपने सारे साइन चेंज कर देंगे। अब जैसे आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन था 7x² माइनस 4xy प्लस 5y² माइनस 5x प्लस 2y। अब आपने क्या करना है, ये तो आपकी फर्स्ट रो आ गई। सेकेंड एक्सप्रेशन है 5x², अब 5x² आप चूज़ करोगे वो x² वाली टर्म के नीचे लिखोगे, y² की टर्म के नीचे, y की टर्म के नीचे, और कांस्टेंट की फर्स्ट वाली रो में कोई भी टर्म नहीं थी तो इसको हम थोड़ा साइड पे ओपन एरिया पे लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज कर देने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में। इसके लिए जो चेंज करना है साइन उसको सर्कल में ले लिए, सर्कल में लेने का मतलब है कि ये साइन मुझे काउंट नहीं करने, इसकी जगह पे जो नीचे साइन चेंज करके लिखे गए वो साइन आपने काउंट करने हैं, लाइक 7 माइनस 5 2। अब
-4x की तो कोई भी लाइक टर्म नहीं थी, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें इस टर्म के साइन चेंज नहीं होंगे। देखो फर्स्ट वाला रो में जो लिखा जाता है, अगर सेकंड वाली रो में कोई भी उसकी लाइक टर्म नहीं है तो उसका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई भी ऐसी टर्म जिसका लाइक टर्म अवेलेबल नहीं होता तो वो एज इट इज़ ही आती है, बट वो अगर फर्स्ट रो में हो वर्टिकल में, बट अगर वो सेकंड रो में हो तो सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म में कोई, फर्स्ट वाली रो में कोई लाइक टर्म नहीं थी, तो -4 का +4 एज इट इज़, क्योंकि वो नीचे वाले एक्सप्रेशन में था, प्लस माइनस में चेंज हुआ और अगर टर्म सेम हो, अपोजिट साइन हो तो 0 आ जाता है। -5x एंड 5 - 4 गिव मी +1 y²। सो दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट भी आपका इसी तरह से है। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन 7x² y -xy + 3x - 2 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 5x² y 5xy -6x - 7, और सेकंड वाली रो के आपने साइन चेंज कर देने हैं। सर्कल पहले मार्क कर देना है किसको चेंज किया, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होगा और नेगेटिव पॉजिटिव में, देन यू हैव टू सॉल्व। तो सर्कल वाले तो आपने भूल ही जाना है, इग्नोर कर देना। सर्कल के नीचे जो आपने न्यू साइन लिखे हैं वो काउंट करने हैं। -2 + 7 + 5 -3 + 6 9 -1 -1 -5 -6 and +7 - 5 give me 2. So that is my required answer. Similarly सेकेंड एक्सप्रेशन में भी था, थर्ड सी पार्ट में 2x² y। अब इस वाली टर्म में कोई भी x² y की टर्म नहीं थी, xy² थी, और xy² के ऊपर कोई टर्म नहीं थी, तो इसको मैंने साइड पे लिखा क्योंकि इसकी कोई भी लाइक टर्म फर्स्ट रो में नहीं है। और नेक्स्ट 4x की लाइक टर्म थी x, और +2 की लाइक टर्म थी यहाँ पे +7। अब नीचे सिर्फ नीचे वाली टर्म के साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। अब 2x² y की तो कोई लाइक टर्म नहीं है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाली जो नीचे वाले एक्सप्रेशन में लाइक टर्म थी, इसका सिर्फ साइन चेंज हुआ है पर ऊपर कोई टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज़ जो साइन चेंज होकर टर्म आएगी वो आएगी। देन +2 - 7 गिव मी -5, 4 - 1 गिव मी +3। सिमिलरली मेरा डी पार्ट है 4a³ + 4a² b, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स अरेंज करने के बाद जो टर्म लाइक टर्म में नहीं आती वो आपने बाद में सेपरेटली लिख देनी है, और साइन चेंज किए हैं। एंड माय रिक्वायर्ड आंसर है 16a³ + 11a² b² + 12b²। थैंक यू, हैव अ नाइस